السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. اس لڑکی کی ڈیٹیلز نکلواؤ، دیکھوں تو کتنے پانی میں ہے. اس نے کسی کے سامنے ایک لڑکی کی تصویر پھینکنے کے انداز میں دی تھی. اس نے تصویر ہاتھ میں لی اور مسکرا دیا. خوبصورت ہے. اس کی آواز سن کر اس نے سختی سے سامنے والے کو دیکھا. میں تمہاری آنکھیں نکالوں گا. جتنا کام کہا جائے اتنا کیا کرو. لڑکی پر چوری نظر رکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی بات سن کر اس نے لب بھینچے اور اٹھ کھڑا ہوا. وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور تصویر دینے والا شخص کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا. تمہیں تمہاری ماں کی قیمت چکانی ہوگی. وہ سرگوشی میں پین کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا. کراچی کی ایک بہت بڑی اور مشہور کارپوریٹ بلڈنگ کے چمکتے دمکتے ہال میں نرم روشنیوں کے درمیان ایک پرسکون سا منظر بکھرا تھا. کونے میں لگے شیشے کے بڑے بڑے کیبنوں میں کام کرنے والے لوگ اپنی سکرینز پر جھکے بیٹھے تھے. فون کی بیلنگ، کی بورڈ کی ٹک ٹک اور کہیں کہیں پرنٹر کی آواز آفس کے ماحول کو ابھرتی جا رہی تھی. انہیں میں ایک میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے کام میں محو تھی. وہ درمیانے قد کی، سنجیدہ مگر جاذب نظر لڑکی تھی. اس کے نین نقش میں ایک خاص معصومیت جھلکتی تھی، لیکن بات چیت میں ایک پختگی اور اعتماد محسوس ہوتا. وہ نہ تو زیادہ باتونی تھی اور نہ ہی غیر ضروری دکھاوے کی قائل. آفس کے دوسرے ملازمین کی طرح گوسپ یا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مرحا نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کام کے لیے وقف کر رکھا تھا. یہ لڑکی کچھ اور ہی ہے. پتہ نہیں اتنی محنت کہاں سے لاتی ہے. لیکن مرحا کو ان جملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ جانتی تھی کہ زندگی نے اسے آسان راستے نہیں دیے اور اگر آگے بڑھنا ہے تو محنت ہی اس کا سہارا ہے. شروع میں مرحا نے آفس جوائن کیا تو سب نے سوچا یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح کچھ دن کام کرے گی اور پھر چلی جائے گی. مگر چند ہی مہینوں میں اس نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا. وہ رپورٹس وقت سے پہلے مکمل کرتی، پریزنٹیشن میں ایسی باریکیاں دکھاتی جو باقیوں کے ذہن میں بھی نہ آتی. کلائنٹس کے ساتھ بات کرتے اس کی نرمی اور اعتماد کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا. یہی وجہ تھی کہ جلد ہی آفس میں سب کا دھیان اس کی طرف جانے لگا. کچھ لوگ رش کرتے، کچھ اس سے چپ چاپ متاثر ہوتے اور کچھ اس کے خلاف سازشیں بھی سوچتے. مگر مرحا کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ تیزی سے پریزنٹیشن دینے جا رہی تھی. اس وقت روم میں بڑی بڑی کمپنی کے لوگ آئے ہوئے تھے. مرحا کے قدم اعتماد سے اٹھ رہے تھے. وہ آفس ڈریس میں باوقار لڑکی تھی. اس نے روم میں آتے ہی سب کو ہیلو کیا اور پریزنٹیشن دینے لگی. وہاں کسی کی نگاہ اس پر ٹکی ہوئی تھی. اس نے بنا دھیان دیے اپنا کام مکمل کیا. ایسی نظروں کی اب عادت ہو چکی تھی اسے. وہ جیسے ہی روم سے نکلی اس کے پیچھے کوئی تیزی سے آیا. مرحا نے غصے سے آنے والے کو دیکھا، لیکن اسے جب حیرانی ہوئی وہ بڑی کمپنی کا CEO کے سامنے تھی. میں جہانگیر. اگر جاب کرنی ہے تو بڑے لیول کی کرو. اگر میری آفر پسند آئے پرسنل سیکرٹری کی تو ضرور رابطہ کرنا. اس نے سنجیدگی سے بات کی تھی کہ مرحا نے اس کے چہرے پر فلرٹی جیسا کچھ تلاشنا چاہا، لیکن اس کی نظریں ناکام لوٹ آئیں. میں یہاں 1 سال سے جاب کر رہی ہوں. میں ایک عام ورکر سے یہاں تک پہنچی اور امید ہے آگے بھی بڑھ جاؤں گی. آپ کی آفر کا شکریہ. اس نے سختی سے کہتے ہوئے اپنے قدم اٹھائے. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اسے مسکرا کر دیکھنے لگا. 1 ہفتے بعد مرحا جہانگیر کے آفس چلی آئی تھی. اسے انٹرویو کے لیے بٹھایا گیا تھا. جب وہ جہانگیر کے آفس میں پہنچی جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ؟ وہ اتنی جلدی؟ اس کے آنے کی امید نہیں کر سکتا تھا. جی. وہ احتراماً کھڑی رہی. جب جہانگیر نے ٹیک اے سیٹ پلیز کہا وہ ہیل کی ٹک کے ساتھ آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی. آپ کے انٹرویو دیے بنا ہی یہ جاب آپ کو آفر کی تھی. آپ کی صلاحیتیں دیکھ کر میں نے آپ کو چنا ہے مس. وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا. جب اس نے سوالیہ انداز سے نام پوچھا مرحا زہیب، اس نے اپنا نام بتایا تو وہ سر ہلا کر
बाहर की जानिब देखने लगा। मिस मिरहा, आपको अगर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कबूल है तो पेपर साइन कर दें। उसने रिंग करके किसी को बुलाया था और वो हाथ में पेपर लिए अंदर आ गया था। उसने हंकार भरकर पेपर साइन कर दिए। जॉब कल से स्टार्ट करनी है? उसने जहांगीर से पूछा तो वो इस बात में सर हिलाने लगा। मिरहा वहां से चली गई थी। जहांगीर ने सुकून की सांस ली। वो 1 महीने में 10 सेक्रेटरी बदलता था। कोई उसका काम ढंग से नहीं करता था। उसे उम्मीद थी कि मिरहा उसका दिमाग खराब नहीं करेगी। अब वो लैपटॉप स्क्रीन पर झुक गया। ये कंपनी भी उसकी पहले वाली कंपनी से मुमासलत रखती थी और उसने काम किया था, इसीलिए उसे काम समझने में वक्त नहीं लगा। उसका केबिन जहांगीर के ऑफिस के बिल्कुल बराबर में था, जहां उसकी ऑफिस की चीजें तरतीब से रख दी गई थी। आज मिरहा ने लेडीज टाई पहनी हुई थी। उसके बाल कंधों को छू रहे थे। उसने सेक्रेटरी के हिसाब से अपना लुक चेंज कर लिया था। जहांगीर जब ऑफिस आया, वो चीफ से उसकी मीटिंग्स के बारे में सब डिटेल ले चुकी थी। मिरहा के हाथ में उसका शेड्यूल लिए आईपॉड थमा हुआ था। जहांगीर के आते ही वो तेजी से उसके पीछे ऑफिस में आई और उसे देखकर जहांगीर के माथे पर बल पड़ गए। फिर याद आने पर कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, यकीनें कम होती गई। पहली मीटिंग कब है? उसने कोट उतारकर लैपटॉप स्क्रीन खोली। उसने आस्तीन फोल्ड की। ये उसकी आदत थी। 11 बजे मेयर हाउस में आपकी मुलाकात है। उसने संजीदगी से किसी रोबोट की तरह बताया और वो करके लैपटॉप चलाने लगा। आप वहां किस सिलसिले में जाएंगे सर? उसने हैरत से पूछा कि उसका मेयर हाउस में क्या काम था। वो हमारी कंपनी के साथ कोलैब करना चाहते हैं। एक इश्तहार का काम है बस। वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाते बोला। मिरहा ने कुछ पल गर्दन घुमाते सोचा। सर? उसके जहन में कोई शक सा कूंदा था। उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मुझे लगता है मेयर आपकी कंपनी को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने गैर मरई नुक्ते की जानिब देखते हुए कहा। उसका दिमाग मुसलसल आखिरी हद तक सोच रहा था। कैसे? उसने चौंक कर मिरहा को देखा। वो इसे नहीं देख रही थी। आपकी कंपनी टॉप 5 में से है और आजकल मेयर पर कुछ केसेस चल रहे हैं। मेरा जहां तक दिमाग जा रहा है, वो आपकी केमिकल कंपनी को इस्तेमाल करके अपना काम करेगा और इल्जाम यहां डाल देगा। जहांगीर उस कोलैब को हल्के में ले रहा था। मिरहा को हैरत से देखा, जिसने अब उसकी जानिब निगाह फेरी थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? वो वाकई जानना चाहता था कि वो वाकई आम सी लड़की थी। मैं सोच नहीं रही, ना ही इल्जाम लगा रही हूँ। मुझे 100% यकीन है वो अपने जहरीले केमिकल का इल्जाम आपकी कंपनी पर लगाएगा। इस कोलैब को डिसमिस करें। वो सख्ती से अपनी बात पर कायम रही। जहांगीर ने फोन उठाकर मेयर के सेक्रेटरी को कॉल करके फौरन कोलैब कैंसिल कर दी। मिरहा ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं उस पर रिपोर्ट कराऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मेरे घर आने की रसाई मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मिरहा ने जहांगीर को देखा। ऑफिस वर्क के लिए? उसने पहले वजह नहीं बताई थी, वरना अभी के अभी मिरहा ने जॉब छोड़कर चलता बनना था। वो जब चली गई, जहांगीर ने अपने अहम आदमी से मेयर की रिपोर्ट निकालने का हुक्म जारी किया। मिरहा लैपटॉप ओपन किए बैठी अपने काम में मसरूफ थी। जहांगीर को हैरत हुई, वो चीज़ों को कितना गहराई से देखती है। उसने नफी में सर हिलाया कि उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। एक हफ्ते में ही वो सबको अपनी सलाहियतों से हैरान कर चुकी थी। वहीं जहांगीर भी हैरान था। इतनी काबिल थी वो और आसानी से जॉब छोड़कर चली आई थी। उसने सोचा वो इसकी पुरानी कंपनी जाकर पता करे, आखिर वो इतनी आसानी से यहाँ कैसे आ गई। वो आज मिरहा को ऑफिस ही छोड़े उसकी कंपनी आ गया। उसने मुलाकात CEO से की। मिरहा ज़ुहैब इतनी काबिल है, फिर उसने ये जॉब क्यों छोड़ दी? उसने कॉफ़ी का कड़वा घूंट भरते हुए पूछा। बस यार, ज़रा सा कह दिया था कि तुम्हें पसंद करता हूँ, डिनर पर चलो। उसने जॉब ही छोड़ दी। वो अफसोस से सर हिला रहा था। जहांगीर ने उसके चेहरे की जानिब मुआयना करती नज़रों से देखा। गलत, तुमने उसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की होगी। उसने यकीन से कहा तो वो गड़बड़ा गया और जवाब में कुछ ना बोला। जहांगीर ने उसकी गर्दन दबोच ली।
उस लड़की पर गंदी निगाह मत रखना, अब वो मेरी सेक्रेटरी है। उसकी बात सुनकर सामने वाले के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए और वो ये कहकर कॉफी अधूरी छोड़े चला गया। उसने कॉलर ठीक किया और गुस्से से मुक्का टेबल पर मारा। यू बिच। वो गुस्से की आखिरी हद को पहुंचा हुआ था। मिरहा को काम करते 1 महीना हो गया और उस बंदे ने रिपोर्ट पहुंचाई तो इसे हैरत हुई कि मिरहा बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो इसकी कंपनी को तहस नहस करने वाला था। शुक्र था कि इसने मिरहा की बात मान ली। जहांगीर उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने घर का कार्ड दे दिया। मिरहा ने पर्सनल कार्ड देकर जहांगीर को देखा। जरूरी काम हुआ तो बुलाऊंगा, वरना नहीं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे पुराने बॉस की तरह गंदी हरकत नहीं करूंगा, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन मिरहा को उसकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना पसंद न आया। माजरत, लेकिन आपको ऐसी बातें करने का मैंने हक नहीं दिया, प्लीज। वो बोली तो जहांगीर ने समझकर सर हिला दिया। आज की मीटिंग, उसने बात पलटकर मिरहा को मुतमईन किया और वो गहरी सांस लेकर उसे सारी मीटिंग्स बताने लगी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, राहिम सामने उसकी माँ के साथ बैठा था। उसे देखकर मुस्कुराया। तुम कब आए लाहौर से? उसने राहिम को मुस्कुराकर देखते वालेहाना अंदाज में पूछा। वो दोनों बचपन के दोस्त और कजन्स थे। अभी आया हूँ, सीधा यहाँ ही आया हूँ, अम्मी से भी मिलने नहीं गया। उसने मुस्कुराकर मिरहा को देखा जो ऑफिस ड्रेस में काफी पुरकशिश लग रही थी। मैं भी खाला से मिलने चलूंगी, पहले खाना खा लेते हैं। ऑफिस से लेट आई थी, बस इतवार मिलने जाती थी। आई होप वो ठीक हो, वो अफसुर्दगी से कहती अपने कमरे की जानिब चली गई। राहिम ने नजरों से उसकी पुश्त को गुम हो जाने तक देखा। मैं कह रही थी मिरहा से तुम्हारी शादी राहिम से तय कर देती हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे पूछना चाह रही थी राहिम, तुम्हारी क्या राय है? वो ये बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में मिरहा चेंज करके आरामदेह लिबास में वहां चली आई तो वो दोनों खामोश हो गए। उसकी माँ ने खाना लगाया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। 9 बजे के करीब वो दोनों निकले थे। उनका रुख मेंटल अस्पताल की जानिब था। वो दोनों चलते हुए उसकी अम्मा के कमरे में दाखिल हुए और सामने वो बेसुध लेटी हुई थी। राहिम को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। मेरा बेटा नहीं आया? उन्होंने दरवाजे की जानिब देखते हुए पूछा। राहिम की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। अम्मी, मैं ही आपका बेटा राहिम हूँ, उसने जब्त से कहा जब मिरहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो दोनों कुछ देर बैठे रहे लेकिन वो उन दोनों को पहचान ना पाई। 11 बजे वो दोनों घर में दाखिल हुए। राहिम उन्हीं के साथ रहता था। मिरहा की अम्मा ने राहिम को गले लगाया। वो अस्पताल से आने के बाद बहुत दुखी हो जाता था। मुस्कुराकर कमरे में चला गया और वो दोनों जानती थी अब राहिम कुछ दिन तक अपनी माँ के लिए परेशान रहेगा। मिरहा, उस मीटिंग की फाइल्स बना लेना, मंडे को मीटिंग है। उसने मिरहा को हुक्म दिया तो वो सर हिलाने लगी। हफ्ते का दिन था। वो आराम से घर में राहिम और अपनी माँ के साथ एंजॉय कर रही थी। रात को 12 बजे वो सो चुकी थी जब उसे कॉल आने लगी। उसने गुस्से से फ़ोन उठाया और फाड़ खाने वाले अंदाज में हेलो कहा। हेलो मिरहा, मैं जहांगीर। उसने अपना तारुफ करवाया। यकीनन उसने नाम देखकर कॉल नहीं उठाई थी। जी सर। उसने हैरत से वक्त देकर उसकी कॉल सुनी। कल घर पर आना, कुछ चीज़ें देखनी है। उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया। वो इसका इनकार सुनने का रवादार बिल्कुल नहीं था। इसने गुस्से से फ़ोन को घूरा और सर पटकने लगी। क्या मुसीबत है ये, एक दिन की छुट्टी तक नहीं दे सकता? वो गुस्से से उस वक्त को कोस रही थी जब ज्यादा पैसों की लालच में उसने सेक्रेटरी की जॉब कबूल की थी। वो सर पटक कर सो गई कि कल की कल देखेंगे। वो सुबह ही जहांगीर के बंगले पर पहुंच गई थी। एक तो इस खड़ूस बॉस ने जीना 2 बार किया हुआ है, छुट्टी वाले दिन घर बुला लेता है। वो बड़बड़ाती हुई पूल साइड आई। वो जो पूल साइड आती फाइल मुंह में दिए उसे आज का शेड्यूल बताने लगी। अचानक पांव फिसला और वो पूल में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था। वो पानी के अंदर बाहर हो रही थी। उसे लगा कि उसका सांस उखड़ने लगा है।
पानी में डूबने लगी थी कि अचानक पूल में कोई कूदा। वो पानी के अंदर जा रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। जब जहांगीर ने बाजू से पकड़कर उसे कमर से थाम लिया, मिरहा ने उसे पानी के अंदर अपने साथ देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वो पल में सुर्ख हो गई। छोड़ें, वो उसे अपने साथ देखकर बोली। वो पानी की ऊपरी सतह पर आ गए थे। जहांगीर ने बालों को झटका और मुंह पर से पानी साफ करके उसे देखा, जो सुबकी महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर वाज़ेह शर्मिंदगी रकम थी। पक्का छोड़ दूं? उसने अबरू चढ़ाकर पूछा। इस लड़की को डूबते हुए भी अपनी अना अजीज थी। सर प्लीज, वो कपकपाते लबों से बोली। छोड़ दिया तो पानी के अंदर चली जाओगी। जब बाहर निकलोगी तब भी लोग देखेंगे, इसीलिए अभी मेरे साथ ही बाहर निकलो। उसने झुककर सरगोशी की। मिरहा ने डर से उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। अचानक वो मायने खेज मुस्कुराता उसे छोड़ गया तो वो चिल्लाती हुई उसे पुकारने लगी। जहांगीर दिलचस्पी से उसे डूबते हुए देख रहा था कि वो चुप हुई और वो जल्दी से पानी के अंदर गया। वो आंखें बंद किए ढीले वजूद से अंदर जा रही थी। जहांगीर ने तेजी से हाथ पांव मारे और उसे पूल से बाहर निकालकर CPR दिया। वो खांसते हुए उठी। दूर रहें, वो गुस्से से बोली तो जहांगीर ने सुकून की सांस ली, वरना वो डर गया था। दूर क्यों हूं? अगर ये ना करता तो मर जाती। उसने इतना कहा और उठकर उसके ऊपर टॉवल डाल दिया। वो उसे सख्त घूरी देते अंदर की जानिब बढ़ी और जहांगीर ने उसे कुछ लेडीज ड्रेस दिए ताकि वो जो सूट करे पहन ले। वो पहनकर जहांगीर जहां बैठा था वहां आ गई। फाइल, उसने इर्द गिर्द देखा। स्विमिंग पूल शीशे की दीवार से नजर आ रहा था। पानी में गई फाइल, उसने कहा तो वो माजरत करती नजरों से उसे देखने लगी कि गलती उसी की थी। कोई बात नहीं, लैपटॉप पर सारी फाइल्स हैं, दोबारा बना लेना। अभी मुझे जरा कुछ पॉइंट्स क्लियर करने हैं। वो बैठकर उसे बताने लगा और वो दोनों 3 घंटे तक मुसलसल डिस्कस करते रहे। जहांगीर ने उसे फ्रेश जूस दिया और बाद में उसके लिए लंच बनाने लगा। आप खुद काम करते हैं? उसने हैरत से पूछा। वो उसकी माँ के कपड़ों में थी और जहांगीर का दिमाग शल हो रहा था उसे उन कपड़ों में देख देख कर। उसने महज इतना ही जवाब दिया। आपने नौकर नहीं रखे हुए? उसे तो लगता था सारे अमीर लोग नौकर रखते हैं। नहीं, मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, वो मुस्कुराकर बोला। वो अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। वाह, वो पहली बार जहांगीर से मुतासिर हुई। उसने खाना खाया, वाकई इसके हाथों में काफ़ी टेस्ट था। उसने कॉल करके राहिम को एड्रेस दिया और वो आधे घंटे बाद वहां आ गया। राहिम मिरहा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। दोनों की बेतकल्लुफी जहांगीर बालकनी से देख रहा था। मिरहा मुसलसल हंस रही थी और जहांगीर ने उसे मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। स्ट्रेंज, उसे बहुत अजीब लगा दोनों का इस तरह से बात करना। वो दोनों चले गए तो जहांगीर भी अंदर आ गया। उसने स्टडी का रुख किया था जहां एक कागज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, वो ये कहकर उस कागज के टुकड़े को वापस से किताब में रखे पलट गया। उसे थोड़ी देर बाद अपने माँ बाप की कॉल आई थी जो कि किसी वजह से बाहर मुल्क गए हुए थे। उसका लहजा अपने बाप से उखड़ा उखड़ा था। न जाने वो आजकल अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। जहांगीर ने जिस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत की और मिरहा से करवाई थी उसे हासिल करने में कामयाब हो गया था। मिरहा और जहांगीर खुश थे। मिरहा उसके साथ चलती हुई आगे का प्लान बना रही थी कि अचानक उसकी हील टूट गई और वो उससे पहले कि गिरती जहांगीर ने उसे बाजू फैलाकर गिरने से बचा लिया। वो हैरत से उसकी आंखों में देखने लगी। मैं ठीक हूँ सर, उसने सबको अपनी जानिब देखते हुए पाकर कहा और फौरन से खड़ी हो गई। हील टूट गई है, यहीं रुको, वो संजीदगी से कहकर कॉल करके उसका साइज पूछने लगा। वो बताकर उसे देखती रही और कुछ देर बाद उसे हील्स मिल गई थी। वो काफ़ी महंगी थी। मिरहा को बुरा लगा कि वो किसी से महंगी चीज़ें नहीं लेती थी, लेकिन जहांगीर को क्या कहती। वो अपने केबिन में आई और एक शॉपिंग बैग उठाकर जहांगीर के ऑफिस में आ गई।
सर, ड्रेस का शुक्रिया। उसने वो बैग उसकी जानिब बढ़ाया जिसे जहांगीर ने सर हिलाकर थाम लिया। शुक्रिया सर, वो दोबारा कहकर पलट गई। आप कल जिसके साथ गई थी वो कौन है? उसने बिना किसी फॉर्मल गुफ्तगू के डायरेक्ट सवाल किया। मिरहा चौंक कर पलटी और उसकी आंखों में देखती रही। कज़न है और दोस्त भी, उसने मुस्कुराकर बताया। जहांगीर के तन बदन में आग सी लग गई। वो सोच भी नहीं सकता था मिरहा लड़की को दोस्त भी बना सकती है। उसने सख्ती से मुट्ठी भींची। दोस्त? कज़न? वो सख्ती से मुट्ठी टेबल पर मारते हुए कह रहा था, तुम्हें हम याद रखेंगे, तुम हमको भूल ना जाना। नूर। ये अल्फाज जहांगीर के सर पर हथौड़े बनकर बरस रहे थे। वो गुस्से से मिरहा को देख रहा था जो अपने काम में मशगूल दिखाई दे रही थी। उसने गहरी गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को काबू में किया। वो घर आई तो राहिम उसकी माँ को कंधे से थामे बैठा हुआ था। राहिम, अम्मी को क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। उनके पांव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। किचन से निकल रही थी, फिसल गई। राहिम उस वक्त घर में ही था जब यह हादसा रोनुमा हुआ। वो अपनी माँ के सामने बैठी। अम्मी, दर्द हो रहा है क्या? वो अफसोस और दुख से पूछ रही थी। राहिम मुस्कुराकर बैठ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिरहा। राहिम वक्त पर अस्पताल ले गया था। अब मैं ठीक हूँ और पेन किलर भी दी हैं जिसकी वजह से दर्द महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने उसे मुतमईन करना चाहा लेकिन वो ना हुई। वो दोनों उन्हें कमरे में छोड़ आए तो मिरहा राहिम की जानिब पलटी। सच सच बताओ, अम्मी को कोई सीरियस इशू तो नहीं है? उसने राहिम से पूछा कि वही सच बता सकता था। हल्की सी मोच है मिरहा, खाला ठीक हो जाएंगी। मैं अभी जॉबलेस हूँ, खूब ख्याल रखूंगा खाला का। उसने हंसकर कहा तो मिरहा ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। जॉबलेस बंदे, लाहौर में अच्छी खासी जॉब थी, छोड़कर आ गए। वो दोनों लाउंज में बैठे हुए थे। आज काफी वक्त बाद दोनों दोस्तों की तरह बैठे बात कर रहे थे। तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? उसने सोचा आज मिरहा से बात ही कर ले। क्या इरादा होना है, अभी बिल्कुल शादी जैसी चीज दूर दूर तक नहीं। उसने लंबी सांस ली और पलट कर इसे देखा। राहिम, हम अच्छे दोस्त हैं, प्लीज हमारी दोस्ती किसी दूसरे रिश्ते की नजर मत करना। उसकी बात सुनकर राहिम ने हैरत से उसे देखा। मतलब वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी? उसने कुछ ना कहा, बस उसे सुने गया। जैसे हमेशा वो दोनों दोस्तों की तरह एक दूसरे की सुनते थे। मैं सोने जाती हूँ, अम्मी को कल काम ना करने देना। उसने राहिम का कंधा थपक कर कमरे की राह ली और वो कितनी ही देर वहां बैठा रह गया। उसे हमेशा से मिरहा पसंद थी, वो इससे मोहब्बत करता था। अचानक उसे कॉल आने लगी। उसने जेब की पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल सुनी। वो अस्पताल से थी, उसकी अम्मी की हालत बिगड़ रही थी। राहिम मिरहा को बताकर अस्पताल भागा। वो बेचैनी से लाउंज में टहलने लगी कि अम्मी को अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और ना बताकर परेशान कर सकती थी। राहिम को ऑपरेशन का कहा गया जिसके पैसे अदा हो गए थे। वो हैरान था, पैसे कैसे अदा हो गए? इतनी बड़ी रकम तो मिरहा के पास भी नहीं थी। वो फिलहाल के लिए मामला छोड़कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे मिरहा को आगाह करने लगा। वो उसके पास आने का कहने लगी। उसने अपनी माँ को भी उठा दिया था कि साथ चले। वो दोनों टैक्सी लेकर पहुंच गई थी। राहिम सर हाथों में दिए बैठा हुआ था। खाला के गले लगकर रोने लगा तो वो उसे मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रही। उनके पाँव में तकलीफ थी लेकिन उन्होंने अपनी बहन को देखना मुनासिब समझा। मिरहा बेचैनी से टहल रही थी। अचानक उसके सामने कोई आया। तुम यहाँ इस वक्त? सब खैरियत है? जहांगीर वहां अपने दोस्त से मिलने आया था। वापस जा रहा था जब उसकी निगाह मिरहा पर पड़ी तो वो उसकी जानिब चला आया। खाला का ऑपरेशन है, उसने नाखून चबाते हुए बताया। ये मिरहा उस मिरहा से मुख्तलिफ थी जो बहुत एतमाद से ऑफिस में होती थी। जहांगीर ने सबकी जानिब देखा। उसकी माँ ने उठने की कोशिश की जब मिरहा ने लपक कर उन्हें वापस बिठा दिया। अम्मी प्लीज बैठी रहें, उसने उन्हें सख्ती से कहा तो वो जहांगीर को देखने लगी।
बच्चे से मिल रही थी। कौन है? कुलीग है तुम्हारा? उसकी अम्मी ने पूछा तो मिरहा ने नफी में सर हिलाया। अम्मी, बॉस है मेरे, उसने मुस्कुराकर बताया। अरे, इतनी कम उम्र के बॉस? वो मुश्किल से 30 से ऊपर का होगा। मिरहा हंस पड़ी। राहिम भी जहांगीर से मिलने लगा। राहिम की अम्मी का ऑपरेशन चल रहा है, ये मेरा कज़न है। वो राहिम का तारुफ करवाने लगी तो जहांगीर का चेहरा पल में मुतगय्यर हो गया। राहिम डॉक्टर के रूम से बाहर आने पर उनकी जानिब दौड़ा। अम्मी, वो बेचैनी से पूछने लगा। ऑपरेशन कामयाब रहा है, बस दुआ करें जल्दी सेहतयाब हो जाए। उन्हें अपेंडिक्स हुआ था जिसका ऑपरेशन हो गया। वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं थी। राहिम ने सुकून की सांस ली और मिरहा ने आगे बढ़कर उसे हक किया, जिसे देखकर जहांगीर के माथे पर लकीरें उभर आई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो राहिम को कहीं गायब कर दे। खाला ठीक हो जाएंगे राहिम, फिक्र मत करो। उसके तसल्ली देने पर वो इस बात में सर हिलाने लगा। सुबह के 5 बज रहे थे। जहांगीर ने मिरहा को उनका ऑफ दे दिया था और वहां से निकल गया। वो उसकी मशकूर हुई थी कि दोनों बहनें बीमार थी और उन्हें अपने बच्चों की जरूरत थी। 1 हफ्ता गुजर गया और मिरहा ऑफिस ना जा सकी। उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम उलट पड़ गया। जहांगीर को डबल गुस्सा था। पहला कि मिरहा और राहिम का गले मिलना और दूसरा उसकी 1 हफ्ते की गैर हाजिरी। उसका काम कोई भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। वो 2 दिन तक खुद भी ऑफिस नहीं गया। वो ऑफिस आई तो मालूम हुआ 2 दिन से जहांगीर ऑफिस नहीं आ रहा, तो वो सीधा उसके घर गई। वहाँ उसके अम्मा अब्बा भी थे। उसे देखकर चौंक से गए। फिर जहांगीर को कमरे से बुलवाया तो वो इसे देखकर हैरान हो गया। आप ऑफिस नहीं आए तो सोचा खैरियत मालूम कर लूं, मिरहा ने नर्वस होते हुए कहा। उसके अम्मा अब्बा जहांगीर को मुस्कुरा कर देख रहे थे। असल में मामा और बाबा बाहर थे, मुल्क से कल ही वापस लौटे हैं। वो अपनी वजह से भी छुट्टी कर रहा था, लेकिन उसे पेरेंट्स का बहाना मिल गया। मिरहा ने समझकर सर हिलाया। जहांगीर ने उसे उसकी खाला और अम्मी का पूछा तो उसने बता दिया कि वो बेहतर हैं। मिरहा चली गई थी जब जहांगीर अपने माँ बाप की जानिब मुतवज्जो हुआ। आप लोगों को मिरहा कैसी लगी? उसने डायरेक्ट पूछा। अच्छी, और तुम्हारे लिए परफेक्ट, उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। आप लोग रिश्ता लेकर जाएं मिरहा के घर, जल्द अज जल्द। उसने मिरहा को बिना देरी के अपनाना था। उसे मिरहा हर सूरत में चाहिए थी। कुछ ऐसा भी था जिसकी वजह से वो शादी करना चाहता था। मिरहा के घर का एड्रेस सीवी में था। उसे वहां जाने में मसला नहीं था। वो वापस ज्वाइन करके उसकी मुसीबतों को हल कर गई थी और सबने सुकून का सांस लिया। अब बॉस से उनकी जान छूटी। मिरहा काम में मसरूफ रहती, जबकि जहांगीर उसे देखते न जाने क्या प्लान बनाता था। 1-2 बार मिरहा ने उसकी जानिब देखा, लेकिन वो बड़ी महारत से नजरें फेरने में कामयाब हो जाता। मिरहा ने कंधे उचकाए कि अब उसे गिरेबान से पकड़ नहीं सकती थी। ये सब उस पूल वाले किस्से के बाद हुआ था और उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आता था। काश वो थोड़ा ध्यान ही दे लेती। इतवार की शाम थी। मिरहा चाय बनाकर राहिम और अपनी अम्मी को दे रही थी और फिर खुद भी 1 कप लेकर बैठ गई। उसकी अम्मी अब चल सकती थी, लेकिन मिरहा उन्हें काम करने नहीं देती थी। मिरहा और वो दोनों बातें करते चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि कुछ लोग दरवाजे से अंदर आए। मिरहा खड़ी हो गई। वो इतनी अचानक खड़ी हुई कि उसके कपड़ों पर चाय गिर गई। उसने चाय के बजाय सामने मौजूद जहांगीर के अम्मा अब्बा और जहांगीर को देखा। वो मुस्कुराकर सबसे मिले। उसकी अम्मी ने उन्हें बिठाया और मिरहा किचन की जानिब चल दी कि तजस्सुस को बाद में देखेंगे, पहले उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करना ज्यादा जरूरी था। बातों के दौरान जहांगीर के वालिद ने अपने आने का मकसद बयान कर दिया। उसकी माँ के चेहरे पर फैली हैरत जहांगीर मुसलसल नोट कर रहा था, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी कहने से गुरेज ही कर रहा था। राहिम और उसकी माँ इस रिश्ते पर हैरान हुए थे और उन्होंने मिरहा से पूछने की मोहलत मांगी थी। मिरहा को मालूम ही ना हुआ कि वो लोग वहां आए क्यों थे। रात खाने के बाद उसकी माँ ने कमरे में बुलाया और बताया कि वो लोग जहांगीर का रिश्ता लेकर आए थे। मिरहा बहुत हैरान हुई थी।
तुम्हारी मर्जी है, राहिम या जहांगीर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। राहिम से उसे शादी कभी नहीं करनी थी, लेकिन जहांगीर। वो कमरे में आई और जहांगीर से जवाब तलब करने का सोचने लगी। रात गुजरी और सुबह वो ऑफिस आते ही जहांगीर के सर पर पहुंच गई। उसने स्टाफ को कमरे से जाने का हुक्म दिया तो मिरहा तेजी से जहांगीर के करीब आई। आपने रिश्ता क्यों भेजा? वो बेचैनी से सवाल पूछ रही थी। उसे सब जानना था। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो मुस्कुराते हुए लहजे में पूछ रहा था। मिरहा को गुस्सा आने लगा। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती, मेरे लिए आप खड़ूस बॉस हैं, वो सख्ती से कहती जाने लगी जब जहांगीर ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। जो भी हूं, एक बार सोचो इस रिश्ते के बारे में, या तुम्हें कोई और पसंद है? उसकी बात सुनकर मिरहा ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। पसंद होता तो वो जिंदगी में भी होता, वो कहकर चली गई। जहांगीर को इत्मीनान हो गया कि राहिम और उसके बीच में कुछ नहीं था। बहुत सोचने और राहिम से रिश्ते से इनकार पर उसकी मां ने जहांगीर के लिए मिरहा को मना लिया। उनके हाँ कहते ही मिरहा और जहांगीर की मंगनी घर में ही तय कर दी गई। मंगनी हो चुकी थी। जहांगीर की नजरें भटक भटक कर मिरहा पर उठ रही थी। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। राहिम का फोन बजने लगा तो उसने कॉल उठाई। उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मी, वो चीख कर बोला कि मिरहा फौरन उसके पास गई। राहिम खाला को क्या हुआ? राहिम ने मिरहा की जानिब देखा। उनकी हालत ठीक नहीं है, वो रो रहा था। मिरहा की माँ और जहांगीर के बाप की निगाह मिली और ये तसादुम जहांगीर से छुपा ना रह सका। वो सब तेजी से भागते हुए गाड़ियों में बैठे और अस्पताल पहुंचे। उसकी माँ की आखिरी सांसें बाकी थी। आप जाएं अंदर। डॉक्टर ने जब एक बंदे को मिलने की इजाजत दी तो मिरहा की माँ ने जहांगीर के बाप से कहा। तो सब शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से रूम में गए और उन्हें देखकर वो मुस्कुराई थी। मास्क हटाकर कुछ कहना भी चाहा, लेकिन आवाज बहुत हल्की थी। मकसूद, वो उन्हें याद रखे हुए थी। सब शीशे के पार से देख रहे थे। सबके चेहरों पर सवाल थे। नूर, वो जल्दी से उनका हाथ थाम गए। मकसूद, मैं तुम्हें नहीं भूली। वो मुस्कुराकर रो रही थी तो वो भी रोने लगे। सबकी आंखें अश्कबार हो गई थी। मैं जानता था तुम मुझे नहीं भूल सकती हो नूर। वो मुस्कुराकर हाथ थामे हुए थे कि अचानक मशीनों में से आवाजें आने लगी। मकसूद भागकर बाहर गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। मकसूद शिद्दत से रो दिए। मामा, ये सब क्या है? जहांगीर ने हैरानी और परेशानी से पूछा। उसकी माँ दूसरी औरत के साथ अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जहांगीर, मैंने इनके दरमियान आकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो रो रही थी। जहांगीर को शदीद झटका लगा। मिरहा और राहिम की हालत भी बिल्कुल जहांगीर की तरह थी। मकसूद अंदर कमरे में आंसू बहा रहे थे और ये आंसू सालों पर मोहित थे। इतनी जल्दी थम नहीं सकते थे। तुम्हारे बाबा और राहिम की मामा एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने रोते हुए कहानी का आगाज किया। वो जो सोचे बैठा था वैसा कुछ नहीं था। मकसूद और नूरे हरम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दोनों को पता भी ना चला। उन दोनों ने 4 साल एक दूसरे के साथ यूनी में गुजारे थे। उन्हें यकीन था यूनी के बाद वो अपने अपने घरों में बात करके एक हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मकसूद 6 माह के लिए अमेरिका चले गए थे। वहाँ उनके मालिक थे जिनकी वजह से वो इतना पढ़ पाए थे, वरना वो बहुत गरीब थे। जहांगीर की माँ की तलाक हुई थी और वो गम में मुब्तला थी। मकसूद के मालिक ने उनके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि वो कायनात से शादी कर ले, और उन्होंने हमेशा की तरह अपना सर झुका दिया। उनकी शादी हो गई। वो वापस लौट आए, लेकिन दिल बेचैन था कि नूर कैसी होगी। वो इंतज़ार कर रही होगी इनका। वो परेशान होते हुए उन्होंने कायनात को सब बातें बताई थी और वो नूर से मिलना चाहती थी,
لیکن مقصود کو جب معلوم ہوا کہ نور کی شادی ہو گئی ہے، انہوں نے کائنات کو بھی روک دیا اور خود بھی رک گئے۔ مرحا کی ماں بڑی اور راحم کی ماں چھوٹی تھی۔ دونوں کی ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ نور فاطمہ مرحا کی ماں کا نام تھا، جبکہ نور حرم راحم کی ماں کا۔ 5 سال شادی کو گزر گئے تھے۔ راحم 4 سال اور مرحا 6 ماہ کی تھی۔ اس دن ان پر قیامت خیز دن تھا جب انہیں اسپتال سے کال آئی کہ 2 باڈی ہیں، انہیں پہچان لے۔ وہ روتے پیٹتے اسپتال پہنچے۔ وہاں دونوں بھائی اب بھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ بیوہ ہو گئی تھیں۔ دونوں گاڑی میں جا رہے تھے کہ ٹرالر نے گاڑی کو ہٹ کیا اور وہ سمندر میں جا گری۔ دونوں بہنوں نے شادی نہ کی۔ راحم کی ماں کا دماغ دن بدن مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چیزیں بھول جاتی تھیں، کبھی راحم کو پہچاننے سے انکار کر دیتی تھیں۔ انہوں نے مقصود کے جانے کے بعد اپنے شوہر کے جانے کا گہرا صدمہ لیا تھا۔ جب تک انہیں معلوم ہوا ان کا دماغی توازن بگڑ گیا، تب تک دیر ہو گئی تھی۔ راحم جب 15 سال کا تھا، اس نے اپنی ماں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وہ اپنی بہن اور مرحا کو مارنے لگتی تھی۔ وہ تینوں ان سے ملنے جاتے تھے، وہ پہچانتی نہیں تھی۔ راحم کی دنیا خالی ہو گئی۔ مرحا نے سمجھداری سے اس سے دوستی کر کے اسے اندھیروں سے نکال لیا، اور یہ دوستی راحم کے لیے محبت میں بدل گئی۔ لیکن مرحا کے لیے راحم صرف دوست تھا۔ راحم اور مرحا نے گھر کے حالات سدھارنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا، اور مرحا جاب کرنے لگی تھی۔ گھر کے حالات بدل گئے، لیکن قسمت تنہائی نہیں بدل سکی تھی۔ کچھ ماہ پہلے مقصود کو معلوم ہوا کہ نور کن کن حالات سے گزری ہے۔ انہوں نے کائنات کو بتایا، اور جو روئے کہ بس وہ پل پل مرتے تھے۔ انہوں نے مرحا کی ماں سے رابطہ کیا اور انہیں اسپتال کا خرچہ اٹھانے کی اپنی خواہش بتا دی۔ کائنات کے بابا نے اپنا سب کچھ مقصود کے نام کر دیا تھا۔ ان کی بس بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ایمانداری سے اس بزنس کو چلایا تھا۔ کائنات زبردستی انہیں ملک سے باہر لے گئی تھی کہ کہیں وہ بھی غم سے پاگل ہی نہ ہو جائیں۔ جہانگیر نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسا کیا چھپاتے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر انہیں افسوس ہوا تھا۔ جہانگیر خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہا۔ وہ مرحا سے بدلے کے لیے شادی کرنے والا تھا۔ وہ جلدی سے اسپتال سے نکلا، کہیں وہ وہیں نہ بکھر جائے۔ اپنا تماشا لگانے سے اسے خوف آیا۔ سب نے تدفین کا انتظام کیا اور جہانگیر نے بس کچھ پل کے لیے شرکت کی اور واپس چلا گیا۔ مرحا اس کا بدلہ رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ کیا سمجھتا تھا اور اس کا باپ کیا نکلا؟ وہ غصے سے دیوار پر مکہ مار رہا تھا۔ نور حرم کی آخری خواہش انہیں دیکھنے کی پوری ہوئی اور روح نے جسم سے آزادی لے لی۔ وہ آج پھر کمرے میں بند رو رہے تھے۔ کائنات انہیں سنبھال رہی تھی۔ وہ ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو کہ لڑ جھگڑ کر اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ مقصود نے طلاق کے بعد انہیں ہیل کیا تھا، انہیں سمجھا تھا۔ کائنات نے بھی اپنا دل کڑا کیا اور مقصود کو گرنے سے تھام لیا۔ وہ جب بھی نور کی بات کرتے ان سے ہی کرتے۔ وہ ان کی ہم سفر اور دوست تھی۔ وہ غمگین تھے، کائنات کی انہیں ضرورت تھی، اسی لیے وہ جہانگیر کے پاس بھی نہ جا سکی جو سچ سن کر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ جہانگیر کو جب معلوم ہوا اس کا باپ کسی عورت کو رقم دیتا ہے تو اسے اپنے باپ پر شک ہوا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اسے وہ کاغذ کا ٹکڑا مقصود کی پرانی کتاب سے ملا جس پر شیر کے ساتھ نور کا نام درج تھا۔ وہ غلط سمجھا کہ نور مرحا کی ماں ہے۔ اسے لگا اس کا باپ دوسری عورت کے ساتھ مل کر ماں کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کے پیسوں کو وہ دوسری عورت پر لوٹا رہا ہے۔ جہانگیر نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا سوچا تھا اور اکاؤنٹ نمبر سے گھر کا پتہ معلوم کیا اور 2-3 بار مرحا کو دیکھ کر اس کی تصویر بنا لی اور پھر اس کی انفو نکلوائی۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے کمپنی سے میٹنگ کے لیے رابطہ کیا اور اس میٹنگ میں مرحا بھی شامل تھی۔ اس کی نظریں مرحا پر سے نہ ہٹی۔ اس کے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ اور پھر اس نے سیکٹری کی آفر کی۔ اسے یقین تھا وہ بڑی اپرچونیٹی ہے،
वो मान जाएगी। वो उसका इंतजार करता रहा। 1 हफ्ते बाद उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन ये जानकर गुस्सा आया कि उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई थी। वो बदला लेने के लिए मेरा को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसका दिल उसे मलामत करता था। उस दिन स्विमिंग पूल वाले वाक़ये ने जहांगीर को नए जज्बात से रोशनास करवाया था। उसने कभी भी किसी लड़की के साथ जो काम ना किए वो मिरहा के लिए किए। उसे गुस्सा आता था वो मिरहा के साथ सख्ती क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बाबा का मिरहा की माँ से मिलने के बाद उड़ता रंग बता चुका था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसे लगा था मकसूद मना करेंगे कि ये शादी ना करे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी ना कहा। वो हैरान हुआ और फिर वहां से हाँ हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उन्हें कैसे पकड़े। जहांगीर सब जानकर बहुत शर्मिंदा था। बिना तस्दीक के उसने किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने का सोचा था। मुंह से ना कहा, लेकिन इरादा तो गलत था ना। वो सिगरेट पहली बार पी रहा था। उसे खांसी आ रही थी। वो शदीद गुस्से में था। मेरा अपनी खाला के पुरसे में आए लोगों की वजह से उसे कॉल ना कर पाई। जहांगीर ने सोच लिया था कि वो मिरहा से मंगनी तोड़ देगा। वो बालकनी में खड़ी गहरी सांस ले रहा था कि अब इस रिश्ते को यहीं रुक जाना चाहिए। जिसमें धोखा हो वो रिश्ता कितनी देर चलेगा, और मिरहा को जब मालूम हुआ तो वो ज़रूर ये रिश्ता तोड़ देगी। और उसकी आंखें जो एतबार टूटेगा वो नहीं देख सकता था। वो ऑफिस नहीं जा पा रही थी। राहिम और उसकी अम्मी सदमे में थे। उनको सहारा देना ज़रूरी था। रोज़ जहांगीर के माँ बाप मिलने आते। मिरहा की माँ के साथ वो पुरानी बातें दोहराते थे। उस रात वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी कि उसकी निगाह सामने से आती कार पर पड़ी। जहांगीर कार से बाहर निकला और मिरहा को घर को देखने लगा। वो उसे देख रही थी, लेकिन जहांगीर की निगाह ऊपर नहीं उठी। मिरहा ने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वो उसे कॉल्स कर रही थी और वो उठा नहीं रहा था। और अब वो वहां खड़ा था। न जाने ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो बदल गया था। जहांगीर कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा जब कोई दौड़ता हुआ गेट से बाहर निकला। जहांगीर, उसने पहली बार इसका नाम लिया था। वो पलट कर उसे देखे गया और फिर शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। गाड़ी में बैठो, उसने मिरहा से कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मिरहा भी दरवाज़ा खोलकर बैठी और उसके चेहरे पर कुछ तलाश करने लगी। जहांगीर ने नजरें झुकाए उसे सब बताना शुरू कर दिया। मिरहा को अपनी ज़िंदगी में लाना उसका मकसद था। वो बदला लेना चाहता था। उसने इसकी माँ अपने बाप के मुतल्लिक भी बताया। वो खामोश हुआ तो मिरहा ने आंसू साफ करके उसकी तरफ देखा। मेरी तरफ देखे, उसकी आवाज़ सख्त थी। जहांगीर ने नजरें उठाकर उसके चेहरे पर की। बदला? ये आंखें मुझे हमेशा अलग लगती हैं, और आप कह रही हैं आप बदला ले रहे थे। आपने सोचा लेकिन अमल ना कर सके, क्यों? वो उसकी तरफ देख के संजीदगी से पूछ रही थी। जहांगीर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता। वो थक कर सीट से टेक लगा गया। मुझे पता है जहांगीर, वो कहते हुए उसका हाथ थाम गई और वो हैरत से देखने लगा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस एतराफ़ करने से डरते हैं। अगर आपने एतराफ़ कर लिया तो आप मेरे इनकार के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो उसकी आंखों में देखती पूछने लगी। जब जहांगीर ने निगाहें चुरा ली, वो मिरहा के इनकार का सोचते हुए कुछ भी बताने में वक्त ले रहा था। आप अच्छे इंसान हैं। मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुजारने में कोई मसला नहीं। आपके बाबा ने खाला का खर्चा उठाया। आपके बाबा भी बहुत अच्छे हैं, बस किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इन सब में कोई ना कोई मसलहत होगी। वो उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थामे बोल रही थी। जहांगीर ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। आई एम सॉरी। उसके लहजे में जो शर्मिंदगी थी मिरहा को महसूस हो रही थी। जहांगीर पीछे हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। आप लकी हैं, ऐसे माँ बाप मिले आपको जो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने के बजाय साथ खड़े रहते हैं, हील करते हैं।
मैं चाहती हूँ आप अपने बाबा जैसे बने। जहांगीर ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी जबान मिरहा के एहसान के बायस गंग हो गई थी। मिरहा को लगता था अगर वो उसकी गलती पर उसे छोड़ देगी तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। और वो जानती थी कि जहांगीर बुरा इंसान नहीं था। वो भी उसकी जगह होती, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरती। जहांगीर का साथ देकर उसे हील करना था। वो गाड़ी से उतरी तो जहांगीर का दिल मुतमईन अंदाज से धड़क रहा था। उसके लब इतने दिनों बाद मुस्कुराए थे। राहिम को ट्यूशन पढ़ाने की जॉब मिली थी और लड़की इतनी बातूनी थी कि राहिम अपना सर पकड़ लेता। वो यूनियन स्टूडेंट थी जिसकी मैथ कमज़ोर थी, लेकिन उससे 4 मुलाकातों में राहिम का दिल उसे शर्मिंदा करने लगा था। 1 महीने की ट्यूशन के बाद जब वो रिजल्ट लेकर उनके घर आई, उसके बाबा ने उसकी ख्वाहिश पर राहिम का रिश्ता मांगा, जिसे जानकर वो शॉक्ड हुआ था। मतलब आग दोनों तरफ लगी हुई थी, बस राहिम ही बेखबर था। वो लड़की तो राहिम से मंगने के बाद इतनी खुश थी, और फिर मिरहा और जहांगीर की शादी के साथ उनकी भी शादी रख दी गई। दोनों दुल्हा दुल्हन बने हंस रहे थे। उनके चेहरों पर कोई परेशानी नहीं थी। जहांगीर के बाबा ने मुस्कुरा कर देखा। उन्हें लगा कि जैसे नूर भी मुस्कुरा रही है। वो दोनों अपने अपने घरों में आ गई थी। राहिम जब दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया, उसकी बीवी मुख्तलिफ पोज बनाकर पिक्चर्स ले रही थी। राहिम मुस्कुराता हुआ उसके पास जाने लगा। आपने इतनी आसानी से हाँ कह दी शादी के लिए? मुझे तो लगा था आप कहेंगे मेरी स्टूडेंट है, मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। वो हाथ हिला हिला कर बातें कर रही थी जब राहिम ने मुस्कुराकर उसे खींचकर करीब किया। मैं तुम्हें पहली ही नज़र में देखकर पहचान गया था। तुम्हारे साथ कुछ दिन और रहा तो इस जॉब से बेईमानी कर बैठूंगा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। जहांगीर जब कमरे में आया, मिरहा वहां नहीं थी। उसने हैरानी से पूरे कमरे में देखा, फिर बाथरूम की जानिब आया। वो वहां भी नहीं थी। अब उसे परेशानी लाहक होने लगी। वो कमरे से जा रहा था जब उसे चांदनी की रोशनी में बालकनी में उसके लहंगे में लगे स्टोन की चमक नजर आई और वो मुस्कुराते हुए बालकनी की जानिब चला आया। मिरहा, वो उसको पीछे से थामे बोला। मिरहा ने उसके बाजू पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया। आपका इंतजार कर रही थी। फिर चांद ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। वो मुस्कुराती आवाज में बोल रही थी। मैं ज्यादा हैंडसम हूं या चांद ज्यादा प्यारा है? वो उसको सामने किए पूछने लगा। मुझे चांद ज्यादा पसंद है। देखें कितना रोशन और प्यारा है। उसने रुख मोड़कर शरारत से कहा तो जहांगीर ने उसे कंधों से थामकर अपने सामने किया और संजीदगी से देखने लगा। यानी बस मुझसे शादी कर ली ना? मैं अच्छा लगता हूं और ना ही हैंडसम? वो उसकी गर्दन में बाजू डाले करीब किए अफसोस से बोला कि मिरहा हंस पड़ी।